وچ اوس دواړه میډیم ژبه وشم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، تاسو غږ اورئ د ریډیو امن 88.4 کرک. پروګرام دی د سبا زیرې. پروګرام کې نن خلاف معمول یا خلاف توقع آصف خټک توسی ته مخاطب یم. نور کله دا پروګرام چې دا د موږ پروډوسر صاحب، د موږ انچارج جناب راز عثمان خیل صاحب او پروفیسر نعمت الله خټک صاحب کوي. خو چونکې سرجی چې دا هغه چوټای مې د دې وجې د نعمت الله صاحب نن سات چې دا هغې سره یعنی ملګرتیا چې دو ټیک یوه ګنټه هغه به دی مووي. نو انشاءالله څرنګه نور کله تاسې دا پروګرام اور ووی هغه سے نن به دا پروګرام ډېر بهترین معلوماتي او د فایدې والا وي. پروګرام کې چونکې پروفیسر صاحب خبره وکړله پروګرام فارمیټ چې دا مطلب میډیم چې کوم دا هغه به اردو او پښتو مکس ځکه چې دا پروګرام چونکې فیسبوک باندې لایو ده او د کرک نه علاوه نور ډېرې علاقې دي چې هغه دا پروګرام چې دا هغه خلک یې حق سي. نو د موږ مقصد دا دا چې دا خبرې چې موږ دلته کې کوو پروفیسر صاحب کې خبرې کوي چې هغې نه ډېر خلک چې دي هغه مستفید شي، فایده واخلي. نو دی وجې موږ به امر مجبوري اردو کې هم خبرې کوو او د نه علاوه پښتو کې به هم خپل کنورسیشن د گفتگو د هغه به جاري سدو. ټولو نه اول زه پروګرام کې پروفیسر نعمت الله خټک صاحب ته خوش آمدید ہرکلے ہیں. سر جی پروگرام میں بہت بہت ویلکم اور خوش آمدید. بہت ساری مصروفیات چھوڑ کر ہمارے اسٹوڈیو کو رونق بخشی، یہ ہمارے لیے فخر اور مہمان آپ ہیں آج. میں تو تقریباً 3 ہفتے سے یہ 7واں پروگرام ہے تو مجھے اپنا اپنا نظر آ رہا ہے کہ یہ پروگرام میرا ہے. بالکل سر جی، آپ کو بھی خوش آمدید. بالکل تھینک یو سر. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ میرا پہلا پروگرام ہے اور میں یہ بھول گیا تھا کہ پروگرام میں مہمان میں ہی ہوں. انشاءاللہ لسنر بات کرتے ہیں. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام ہم جس حوالے سے کرتے ہیں یعنی ہمارے معاشرے میں جو درپیش مسائل ہیں ہمیں، ہوا وہ سماجی مسائل ہیں، معاشرتی ہیں، یا دوسرے جو مسائل ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کو درپیش ہے، یا ہمارے دوسرے جو بزرگ ہیں، بچے ہیں، ان حوالے سے ہم اکثر ان پر بات کرتے رہتے ہیں. تو آج ہم نوجوانوں کے حوالے سے خصوصی طور پر بات کریں گے اپنے پروفیسر صاحب کے ساتھ، چونکہ وہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر عام طور پر ان کا دائرہ ان کے دائرے میں جو لوگ آتے ہیں وہ یوتھ ہی ہیں، نوجوان ہی ہیں. پیشے کے لحاظ سے پروفیسر صاحب یعنی ٹیچر ہیں، پڑھاتے ہیں اور ان کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ نوجوانوں کے ساتھ گزرتا ہے. اس وجہ سے پروفیسر صاحب کو نوجوانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان سے اچھی طرح آگاہ ہے، کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ ان کے پاس آتے ہیں، اپنے مسائل ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. انشاءاللہ آج اس حوالے سے بڑی اہم گفتگو آپ کو سننے کو ملے گی. پروفیسر صاحب آج ہم بات کریں گے ہمارے جو یوتھ ہیں، اسپیشلی جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، ان کو جو مسائل درپیش ہیں، یعنی کچھ مسائل ایسی بھی ہیں کہ شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، اور پھر جب کسی کو اپنے مسئلے کا یہ تک پتہ نہ ہو کہ مجھے یہ مشکل درپیش آ رہی ہے تو حل کرنا تو دور کی بات ہے. آج ہم ان تمام مسائل کی نشاندہی بھی کریں گے اور پھر ایک لائحہ عمل مطلب ہمارے ذہن میں، آپ کے ذہن میں جو مناسب حل ان کا نظر آ رہا ہو وہ بھی سامعین کے گوش گزار کریں گے. آصف بہت شکریہ اور السلام علیکم ناظرین او حاضرین. نن چې موږ ټاپک ته د ځوان کول نن سبا کې سبا زیری کې زموږ عموما د سکوجي د ځوان کول خبره او دغه سوچ او ایشوز او بیا خپل تجربے مطابق دغه حل کوشش کو. صحیح. اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ بھی ایک جوان ہیں، بالکل سر، کھیل کے میدان سے بھی ہوئے، ٹیچنگ بھی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی آپ کے انٹریکشن ہے، آپ کو اپنے وقت میں سب سے بڑا مسئلہ جو آپ نے اپنے لیے فیس کیا، بالکل اس کو بتائیے گا، پھر ہم اس ٹاپک پر آگے جاتے ہیں. سر چونکہ اب تو میری عمر تھوڑی سی مطلب 3 سے اوپر آ گیا، پھر بھی نوجوان ہی نظر آتے ہیں. بالکل ہی نوجوان. سر مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اسکول لیول پر یا کالج لیول پر کہ مجھے پوچھنے میں بہت دشواری محسوس ہوتی تھی اپنے اساتذہ سے، مطلب میں شائنس تھی، لیک آف کانفیڈنس. بالکل یہی بات. اور یہ اس وجہ سے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں یہ بات اپنے ٹیچر سے پوچھوں تو وہ کیا سوچے گا، وہ کیا کہے گا مطلب میرے بارے میں. تو یہی بات جو تھی وہ حالانکہ بہت اچھی بات میرے ذہن میں آتی تھی، بہت اچھا کویسچن ارائز ہوتا تھا لیکن وہ میں نہیں کر پاتا تھا. اب صرف میں ہی نہیں،
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ये मसला आसिफ, ये मसला बहुत से बच्चों का है, जिसको हम कह सकते हैं, आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि सवाल पूछते हुए डर लगना। बिल्कुल। अब डर दो वजहों के साथ लग सकता है। एक तो डर की बड़ी वजह यह है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि मेरी ये जो सवाल है मेरे टीचर्स को अच्छा लग सकता है या बुरा लग सकता है। अमूमन एक तरतीब है ज़िंदगी का कि सवाल करना जो है हमें बुरा लगता है, जिससे सवाल होता है उसको बुरा लगता है। बिल्कुल। तो हम भी इस वजह से कि ऐसा ना हो कि जिस बंदे के साथ, जिस टीचर्स के साथ, जिस पीर के साथ मेरी ज़िंदगी के कुछ दिन गुजरने हैं, उसको कोई मेरी अदा, मेरी कोई क्वेश्चन गुस्ताही ना लगे। लेकिन इसमें दो वजूहात, मुझे जहाँ तक मेरी स्टडी है, दो वजूहात है। बच्चे का पहला हीरो वालिद होता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो रोल मॉडल भी वही होता है। अब जो बच्चे, जिन बच्चों के साथ बाप जो है, उनका वालिद जो है घर में क्लोज होता है, उनके साथ इंटरेक्शन कर लेता है, बिल्कुल, तो बच्चे सवाल करने में भी कोई हिचकिचाहट फील नहीं करते, उसको इज यूजुअल ले लेते हैं। सही। और जिन बच्चों के साथ उनके वालिदैन का गैप होता है, फॉर एग्जांपल हमने एक कैसा बनाया हुआ है, हमारे घर में दो बड़े रिश्ते होते हैं। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, न्यूक्लियर सिस्टम है। बिल्कुल, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है। एक माँ होता है और एक बाप, बल्कि माँ होती है और बाप होता है। अब पहले से एक रिवाज चला आ रहा है हमारे सो कॉल्ड सीडो पश्तून कल्चर में, सही, कि बाप जो है इसको, इन बच्चे को हम इससे डराते हैं। बिल्कुल। और माँ जो है डराती उससे है। सही। लेकिन उससे उसके जरिए है, यानी बाप के जरिए बच्चे को डराती है। यानी वो गलती हुई खुद देखती है, लेकिन कहते हैं कि आपका वालिद आ जाए तो फिर आपको आपसे खैर नहीं होगी। बिल्कुल। तो डेफिनेटली एक कल्चर इस तरह बन जाता है कि हमारे, हाँ, एक और वजह पे है हमारे देहातों में, खास करके रूरल लाइफ में। आप भी एक छोटे से जो सिटी से एडजेसेंट तो है, लेकिन रूरल टच है वहाँ। सही। कि पहले ज़माने में ये हुआ करता था जॉइंट फैमिली सिस्टम में, कि एक प्रॉब्लम थी हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम में कि ये बड़ी शर्म की बात थी कि आप अपने छोटे बच्चे को खुद उठाते। यही बात, ये बहुत पुरानी कल्चर है। तो डेफिनेटली इस कल्चर की वजह से वालिद को शर्म होता था, ये फील होती थी कि मुखपल बचाओ खुस्ताल नखलक बीच सब बेगरत शो बल सरजी लकदात पेगोर पे हवेर को पेगोर वहां तब बचोय पोइश वाला तब बचोय पोइश नो। मसला किसका होता था? मसला उसके बच्चे का होता था कि उसके बच्चे के साथ उसकी गैप आ जाती थी। सही। और फिर ये गैप एक तो ये वाला होता था, यानी माशरे की वजह से कि वो पश्तून सो कॉल पश्तून कल्चर की वजह से कि खलक बसे। सही। और दूसरी बात ये होती थी कि एक गैप था, वालिदा जो थी बिल्कुल वो भी उससे करती थी। तो हमारे घरों के अंदर हमारे इलाके के जो बच्चे हैं आप देखते हैं, उसमें पेशावर में के मुकाबले में, इस्लामाबाद के मुकाबले में या लाहौर के मुकाबले में ये चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपको कम मिलेगा। यही बात है। यानी हम अपने स्कूल्स में बच्चों को बोल्ड नहीं, उनके सवाल पर सवाल उठाते हैं कि आप सवाल क्यों करते हैं। सही। और स्कूल में यही कल्चर है, घर के अंदर भी वो कोई रीजनिंग नहीं कर सकता बिल्कुल वालिद के साथ, भाई के साथ। फिर अगर वो कोई लॉजिकल रीजनिंग भी करता है तो फिर उसको भी गुस्ताही समझता है। तो बचपन ही से हमारे नफ्सियात में, हमारे साइकोलॉजी में, हमारे पर्सनैलिटी में एक आ जाती है कि हम अपने आप को लो प्रोफाइल समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारे बच्चों, हमारे जो स्कूल्स के बच्चे होते हैं, हमारे कॉलेजेस के बच्चे होते हैं, वो एकेडमिकली तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जब उसको अपने एकेडमिक को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है तो उसकी कॉन्फिडेंस जो है कहीं ना कहीं रुक जाती है। अब इस मसले को जो आपने बताया कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डर जाते हैं असल में। अब डर जो है उसकी मैं एक मजीद तारीफ कर लूं, फिर वाज़ेह बात आप पर भी वाज़ेह हो जाएगी और बहुत से सुनने वाले पर भी वाज़ेह हो जाएगी। डर वक्ती होता है। हाँ। अगर हमने इस डर को या इस गुस्ताही को, सो कॉल्ड गुस्ताही को एक या दो दफा दबाया कि नहीं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं,
क्वेश्चन करनी शुरू कर दिया बिल्कुल। तो डेफिनेटली हमें एक ऐसा माहौल मिल जाएगा जहां रीजनिंग पर बात होगी, जहां लॉजिक पर बात होगी, और एक लॉजिकल एनवायरनमेंट में, एक रीजनेबल एनवायरनमेंट में आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है बहुत आ जाता है। जब कोई आपकी बात सुनने लगता है, कोई आपके बात मानने लगता है, तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी एक अपने आप को कुछ समझते हैं। सही। और ये जो खुद को कुछ समझना है, ये बेसिकली कामयाबी की पहली सीढ़ी है टू फेस द हार्डशिप ऑफ द लाइफ। बिल्कुल सर जी। और जब आपको अपने आप पर एतमाद हो कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ या किसी से भी वो मतलब इसको तवज्जो देते हैं, फिर इंसान को लग जाता है कि मेरी बात जो है इसमें वज़न है, और फिर इंसान उससे बेहतर तौर पर सोचने लग जाता है। असल में सर मेरा जो मसला है, मैं अब अपना ज़ाती एक्सपीरियंस वो शेयर कर लूँ आपके साथ। हमारे वालिद साहब वो मुलाजिम आर्मी में मुलाजिम थे, हाँ, लेकिन वो बिल्कुल नरम मिजाज के थे, अब भी हैं, वो कुछ नहीं कहते। उसके बरक्स हमारी जो माँ थी, अब भी वो हयात है, जिंदा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेकर मतलब शादी की उम्र तक ऐसी कोई बात वो नरमी वाली उनसे नहीं सुनी है। वो हमेशा डांटती रहती थी। जब भी हम कोई बात पूछते कि खाना तैयार है, तो उसका ऐसा जवाब सुनने को मिलता कि बस मैं यही सोचता कि बस नहीं पूछूं। अब वही एक आदत जो है वो मुझ में, अब मैं घर में बिल्कुल खामोश रहता हूँ, मतलब बहुत साइलेंट, किसी से भी कोई बात नहीं करता। ये वही आपने जो बात की कि माँ बाप जो है, और बात है ना, बेसिकली हमारे सुनने वाले में बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके वालिदैन, क्योंकि हमारे इलाके का बहुत बड़ा स्ट्रेस आर्मी पर है, तो जिनके वालिदैन आर्मी में मुलाजिम रहे हैं या मुलाजिम हैं, सही, तो उन बच्चों की माँ को भी डिक्टेटर बनना पड़ता है। लॉजिक है ना। बिल्कुल। क्योंकि फौज में इस तरह भी हो सकता है कि आपका वालिद जो है 6 महीने तक, बिल्कुल हाँ, वो बहुत ज्यादा टाइम 4 महीने तक, अगर अल्लाह न करे उसकी सियाचिन या स्कर्दू में पोस्टिंग हो, क्वेटा में हो, तो पहले ज़माने तो बहुत टेंशन थी। ये रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह नहीं थे, तो 6 महीने 1 साल लग जाता था। बिल्कुल। अगर आपकी इन बच्चों की माएँ मिच्योर माँ वो है जिनके शोहर किसी बाहर के मुल्क में है या आर्मी में है, और उनकी अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन जो है यानी महीनों बात होती है, सही, तो सब माओ को करना ये चाहिए जिस तरह कि आपकी माओ को है। तो एक जो डिसिप्लिन का एक बेस है, बिल्कुल ये बात है, वो आपका कहीं खो जाता है। यानी आपकी वालिद तो है नहीं जो डिसिप्लिन को कायम कर ले। अगर माँ भी अपनी वो जो नेचुरल उनके अंदर ममता है, मुलायमत है, मलाहत है, वो बरकरार रख सके, तो डेफिनेटली खो जाते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम एजुकेटेड बच्चों की बात करते हैं, एक तरफ ऐसे बच्चे जो तालीम से दूर रह जाते हैं। आप कुछ इलाकों में अगर आप देखिए, सर्वे कर ले करक में, सही, तो करक में कुछ इलाकों में हमारे जो बाहर के ममालिक में हमारे भाई है, अब्रॉड जिसको यानी दुबई में, सऊदी अरब में, कतर में, कुवैत में काम करते हैं, उनके बच्चों को अगर आप सर्वे कर लें, सही, तो उनके अक्सर बच्चे जो है आज अप टू द मार्क रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। वो तालीम ट्रैक से उतर गए, आसान अल्फाज में। बिल्कुल। मैंने सर्वे की कुछ इलाकों की, कुछ इलाके के बच्चे मोटरसाइकिलिंग में, वन व्हीलिंग में, ये नशों में, और फैसिलिटीज उनको बहुत ज्यादा सर मिल जाती है। रात को अगर आप किसी वक्त, आप तो हाईवे को क्रॉस करते रहते हैं, अभी तो अल्लाह का शुक्र है किसी हद तक ये रात वाले जो ढोल बाजो वाले तमाशे थे, किसी हद तक म्यूजिकल प्रोग्राम तकरीबन ना होने के बराबर रह गए। कुछ साल, 2-3 साल पहले ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा होते थे। तो आप 9 बजे अगर हाईवे पर बैठते, मैंने कई दफा बैठ कर देखा है, तो मोटरसाइकिल का एक जुलूस निकलता था, तो आप समझ जाते थे कि आज इमरान हेड में कोई प्रोग्राम है, या सवेराबाद में है, या यानी सब लोग व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर इत्तला देते थे, ग्रुप में शेयर करते थे कि आज फलां की प्रोग्राम है। तो बन्नू से वजीरिस्तान तक लोग मैंने इन सड़कों पर देखे हैं। तो वो बच्चे, वो माए उस डिसिप्लिन नहीं रख पाती जो जिनके बच्चे अक्सर, जिनके वालिदैन जो है बाहर के मुल्क से हैं। बिल्कुल। तो बाहर के पैसे बेचकर अमूमन वो माओ को बेचते हैं,
रहनुमाओं से बच्चों को फैसिलिटेट कर लेते हैं, लेकिन वो चेक नहीं रख सकते. हाँ बिल्कुल. हाँ, फौजी जिस तरह कि आपने अपनी वालिदा का जिक्र किया, अगर ये इस तरह न करती तो शायद आपका जो इलाका है, सही, आपके इलाके में एक चीज बहुत ज्यादा थी. मैंने 2-3 साल पहले हर चीज की मैंने देखी है. बिल्कुल. आपके इलाके में बच्चे जो है ये वाली जो इंजेक्शन लगाते हैं, हाँ बिल्कुल, इसकी बहुत आदत है. सही. तो मैंने 1-2 घंटे रात के वक्त अस्पताल में भी गुजारे थे, क्योंकि मुझे मालूम हुआ था कि ये बच्चे कंधा के जो बच्चे हैं ये नशे के लिए जब उनको कहीं नहीं मिलता था तो फिर अस्पताल आते थे कि मुझे पेन है. और फिर मैंने उन लोगों से सर्वे भी की जो क्या कहते हैं उसको, डिस्पेंसर वगैरह थे. तो आपको मशकूर होना चाहिए अपनी वालिदा का, जिन्होंने एक फौजी की बीवी की बिल्कुल सर, और डिक्टेटर डिसिप्लिन में रखा. ठीक है, कुछ चीजें तो कभी आ गई, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि वो जो हमारी शॉर्टकमिंग रह जाती है, हम उसको किसी न किसी वक्त में उस पर काबू पा लेते हैं. सर जी, एक बात पर मुझे बहुत फख्र है और मैं फखरिया कहता हूँ कि हमारी माँ ने जो हमारी तरबियत की है, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम चारों भाइयों की, तो पूरी मतलब मेरी उम्र अब तकरीबन 38-39 है. मुझसे दूसरा जो है वो 2 साल छोटा है, फिर और है वो 5-6 साल. 38 के. तो इन सारे अरसे में हमारे किसी भी भाई के खिलाफ कहीं से भी कोई गिला शिकवा घर नहीं आया है कि आपके बेटे ने ये किया है. उस इलाके में जहाँ ये शिकवे बहुत ज्यादा है. हाँ, आपके इलाके में ये नशे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, जंग झगड़े इसका बहुत ज्यादा है. अभी जो कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो आपके इलाके में बहुत ज्यादा है. मैंने यहाँ मार्केट में सर्वे की थी, मैंने खुद सेक्रेटरी हेल्थ, डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ से, उस वक्त की जो डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ थे, उससे बात की थी कि ये दुकानों में जो नशे के जो पेन किलर के जो इंजेक्शन होते हैं, फिर ड्रग्स इंस्पेक्टर से उनको लेटर लेकर, यानी बहुत बिल्कुल मार्केट में हमने बहुत कोशिश की कि इस चीज को कम से कम कर सके. और सर इसकी एक वजह मैं बता दूं, हम कहते हैं कि जिस इलाके में खेलों के मैदान आबाद होते हैं तो वहाँ के अस्पताल और कचहरी जो है या थाना जो है वो गैर आबाद रहते हैं. तो एक वक्त हमारे गांव कंदा जो है, इसमें क्रिकेट बहुत पॉपुलर गेम हुआ करती थी. हमारे जो सीनियर हैं वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे. एक जगह होती थी, हम वहाँ पे मैचेस खेला करते थे, तो वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों की टीमें जो हैं वो यहाँ आती थी, मतलब जिस तरह दौरे पे टीमें जाती हैं. तो आप यकीन माने गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं या जो जितने भी यंगस्टर हैं, छोटे बच्चे हैं, वो सब आ जाते थे वो मैच देखने के लिए. तो बदकिस्मती से वो जगह जो थी, वो हमारी जो पिच थी, वो ग्राउंड था, वो किसी वजह से एक शख्स, बस अल्लाह उसको जन्नत दे, अब तो वो फौत हो चुके हैं, उसकी वजह से वो चीज़ ख़त्म हो गई. तो इसके बाद हमारा क्रिकेट जो था वो तो गांव से ख़त्म हो गया. अब जब हम क्रिकेट खेलते थे तो दूसरी जगह जाते थे, मतलब मैच के लिए डब चले गए, तख्त नसरती चले गए या दूसरे जगहों पे. जब आप तो हमारे जो यंगस्टर थे, हमारे जो यूथ थे, जो मतलब रोज़ उनको एक अच्छी एंटरटेनमेंट मिल जाती थी, वो उससे महरूम हो गए. तो अब क्या था, वही बच्चे, वही लड़के मुख्तलिफ जगहों पे बैठ जाते थे, फिर वो सिगरेट के बाद चर्स, और चर्स के बाद अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो ये चीज़ें आना शुरू हो गई. अब मैं सोचता हूँ कि अगर हमारी जो क्रिकेट है वो जारी रहती तो यकीनन ये इस बला से महफूज रहते. कम्युनिटी सोसाइटी में 2 किस्म के लोग होते हैं. एक सोसाइटी को एक मसला यहाँ आप जानते होंगे, एक और बॉलीवुड ग्राउंड का चल रहा था. सर बिल्कुल. हाँ, तो उस मामले में मेरा भी किसी हद तक रोल था क्रिकेट एसोसिएशन की तरह. तो जो लोग मुहालिफ थे ग्राउंड के, हाँ बिल्कुल, तो वो मेरे घर आए, धमकियाँ भी दी, सही, और कुछ लालच भी दिया. हाँ बिल्कुल. तो मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि आप तो ऐसी भी क्रिकेट नहीं खेल सकते, छोड़ चुके हैं, एज फैक्टर है या दूसरी बिल्कुल, आपको क्या जरूरत है टांग अड़ाने की, मतलब आप क्यों. तो मैंने कहा मैंने अपने लिए कभी भी नहीं सोचा. 120 बच्चे ग्राउंड में खेलते बिल्कुल हैं, और 500 बच्चे जो हैं पुराना बाजार के, जो वो देखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, बिल्कुल, वो देखते हैं. टूर्नामेंट शुरू हो जाता है. अब अगर ये 500,000 बच्चे ग्राउंड को खेल न देखे तो क्या करेंगे, क्या होगा, गलियों में घूमेंगे. बिल्कुल. और गलियों में जब वो घूमेंगे, असर का वक्त होगा, तो आप खुद सोचे कितनी सोशल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, माशरे के अंदर कितनी सोशल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं. तो अल्लाह का शुक्र है वो
اس چیز میں ہم نے بہت بھرپور حصہ لیا کرکٹ ایسوسیشن کے ساتھ. اور ابھی اس گراؤنڈ پہ OGTCL نے بھی کچھ انویسٹمنٹ کی 2.5-3 کروڑ روپے. TMA کرک نے بھی کی, ایکس MP جو ہے گلصیب خان اس نے بھی کی. ٹھیک ہے, وہ پیسے جو ہے اسی طرح یوٹیلائز نہ ہو سکے, لیکن ایک چیز پرماننٹ بیس بچوں کو مل گیا. ابھی بھی جس وقت ہم باتیں کر رہے ہیں شاید اب تو انوالو ہے کرکٹ میں, ابھی بھی میچ ہو رہا ہوگا, کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں گے, لیکن وہاں اسی پہاڑ کے اوپر سے جہاں آج انکلوجر بنا ہوا ہے وہاں ہم پر ہوائی فائرنگ ہو گئی تھی. مجھے پتا روزہ بھی تھا, پہلا روزہ تھا, اور ہوائی فائرنگ ہو گئی تھی. اور جب ہوائی فائرنگ ہو گئی تو میں نے اس وقت جو میرے ساتھ دوست بیٹھا ہوا تھا سجاد عثمان, اس سے میں نے کہا کہ بس یہ گراؤنڈ ہم نے جیت لیا. اگر وہ نہ ہوتی تو پھر وہ فائرنگ نہ ہوتی تو شاید وہ قبضہ ہم واپس نہ لیتے, کیونکہ وہاں قبضہ مافیا جو ہے اس کے نظریے اس زمین پر تھی کہ ہم پلاٹ بناتے. تو یہ کھیل کے میدان جو ہے یہ بچوں کو ایک پازیٹیو جسچرز میں رکھ دیتے ہیں, ان کو انوالو کر لیتے ہیں. کھیل نہیں کھیل سکتے لیکن اس تماشائی بننا وہ بھی انوالومنٹ ہے. جب آپ تماشائی فار ایگزامپل کل یا پرسوں انڈیا کا میچ ہے, ہم نہیں کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن میچ دیکھتے ہیں کا, لیکن ہم اپنی اسپرٹ, اپنی روح, اپنے دل, اپنے وجود کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. اور اتنے انوالو ہوتے ہیں میچ دیکھنے میں بہت سے پاکستان اور انڈین کہ ہماری سوچ جو ہے ادھر ادھر نہیں جاتی. تو یہ کھیل کی وہ لوگ جو کھیلتے ہیں اور وہ لوگ جو دیکھتے ہیں, یہ دونوں کے لیے کھیل کھیلنا جو ہے بلیسنگ ہے, کیونکہ وہ انوالو ہو جاتے ہیں اور نیگیٹیوٹی سے ان کی سوچ جو ہے ادھر ادھر نہیں ہوتی. بالکل. اور سر جی یہ تو کھیل کے لحاظ سے بات ہو گئی کہ کھیل جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں. جو اگر ہم مطلب ایسے ناخوشگوار واقعات کسی بھی ملک کی, کسی بھی معاشرے کی بگاڑ اور اس کے بنانے میں نوجوانوں کا کردار ہے. اگر آپ کے نوجوان اسی طرح کردار ادا نہیں کر رہا ہے یا نہیں کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کے سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا, کیونکہ بگاڑ ختم کرنے والے اور بگاڑ پیدا کرنے والے میجر رول جو ہے ان لوگوں کا ہوتا ہے. اگر یہ میچور ہوں گے, ایجوکیٹڈ ہوں گے, معاشرہ جو ہے اس کی ہمارے ڈیولپمنٹ ہوگی. بالکل سر. اگر وہ بچے جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ مینٹل گروتھ نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی معاشرہ جو ہے بگاڑ پیدا ہوگا, اور جب معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو خیر کسی کی بھی نہیں رہتی. بالکل سر. نوجوان جو ہیں چونکہ یہ انرجیٹک ہوتے ہیں, لہٰذا ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کا حصہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور یہ تب ممکن ہوتا ہے جب ہماری یوتھ جو ہے, ہمارے نوجوان جو ہے وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں. اب کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ ہم پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. ہم اکثریت کی بات کرتے ہیں. اکثریت کی ایجوکیشن جو ہے پہلے جیسے مواقع نہیں ہیں, اس سے کہیں زیادہ اچھے ہو چکے. بالکل سر. یعنی پہلے فار ایگزامپل میں کرک سٹی کا جب میں ماسٹر کر رہا تھا تو کرک سٹی کے ہم جو توڑن سے لے کر کے ڈی تک ہم 10-12 لوگ جو تھے پشاور یونیورسٹی میں ہوتے تھے, 4-5 لوگ اسلامیہ کالج میں ہوتے تھے. اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. اب تقریباً 1600-1700 بچے GPGC کرک میں ماسٹر لیول کی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, اور 800-900 بچیاں, اور تقریباً 1.5 اسی کی تعداد کے قریب 1200-1300 یا 1400-1500 تک خوشحال میں. بالکل. اور گرلس کالج میں, تخت نصرتی میں, یعنی ہر جگہ. یعنی ہم نے ڈور اسٹیپ پہ ہماری ماسٹر لیول کی یونیورسٹی, جس کے لیے ہم نے بہت دور دور تک جانا پڑتا تھا, اور سب بچے تو کسی نہ کسی حد تک جو ایجوکیٹڈ گھر کے بچے تھے وہ چلے جاتے. بالکل. لیکن جو عام لوگوں کے بچہ ہوتی ان کا تعلیم جو ہے BA کے بعد وہ رک جاتا تھا. اب آپ کے اپنے گھر کے اندر BS کرنے والی یعنی ماسٹر کی کیمسٹری بھی ملے گی آپ کو, باٹنی والی بھی ملے گی, انگلش والی بھی ملے گی, پولیٹیکل سائنس والی, ہر علاقے میں. اور وہ بھی گھر کی دہلیز پہ دوپہر کا گانا گھر میں گاتے ہوئے. تو اب وہ اپرچونٹیز ہے, سب بچوں کو ہے, ایجوکیشن مل رہی ہے اور بہت سستی. صحیح. لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہم اسی ایجوکیشن کو اس ایز اے پازیٹیو چینج استعمال کر رہے ہیں, یا پھر ہماری سوسائٹی میں ڈپریشن ہے یا فرسٹریشن ہے؟ بالکل. یہ سوال ہے نا کہ ہمیں آج کی نسل کو اور فیسلٹیز حاصل ہے جو آج سے 30 سال پہلے کے نوجوانوں کو نہیں تھی. وہ فیسلٹیز کا 30 سال پہلے کے جو نوجوان تھے, جو 30 سال پہلے تھے, بالکل
وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بالکل سر جی، میں آپ کی بات سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ اگر ہم اپنی زمانے کی بات کریں، یعنی سر جس وقت آپ پڑھ رہے تھے پرائمری یا ہائی ایجوکیشن جو ہے 10th کی، تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ ناشتے کی کیا صورتحال ہوا کرتی تھی، کھانے کی کیا صورتحال، جیب خرچ کا کیا صورتحال ہوا کرتا تھا، تو آج اگر ہم کمپیئر کریں آج کے بچوں کے ساتھ تو زمین اور آسمان کا فرق ہے ان چیزوں میں. اس وقت کے نوجوانوں کو یا بچوں کو ضروریات کے لیے محنتیں کرنی پڑ رہی تھی. آج ضروریات تقریباً سب بچوں کے ہیں. آج خواہشات کے لیے مسئلہ ہے. آج ضرورتوں کو چھوڑ کر ہم نے خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا ہے، اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یعنی نوجوانوں میں جو یہ مسئلہ ہے نا کہ ہم ضروریات کو چھوڑ کر ہم خواہشات کے پیچھے اور جب انسان خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ اپنا مقصد بھول جاتا ہے. ہاں، اب اس میں 2 وجہ ہیں. خواہشات کے پیچھے گھومنے لگے ہیں، لیکن یہاں ہمیں ایک میں کہہ سکتا ہوں یہاں سیوڈو آئیڈیلزم آ گئی. صحیح. ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو اگنور کر لیتے ہیں، ایک خواہش رکھ لیتے ہیں، ایک آئیڈیلزم بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح اگر میں بن جاؤں، بالکل اس طرح اگر میں بن جاؤں. اب اس کو میں نے سیوڈو آئیڈیلزم کیوں کہا؟ کیونکہ اگر آئیڈیل، پلیٹو نے کہا تھا کہ آئیڈیل از ریئل. صحیح. اگر آپ آئیڈیل رکھتے ہیں تو پھر ریئلزم کی طرف جائیں گے. بالکل. ہم ایک ذہن کے اندر ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں، ایک اسکیچ بنا لیتے ہیں کہ یہ میری آئیڈیلز ہے. صحیح. اب سیوڈو آئیڈیلزم کا لفظ میں نے اس کے لیے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ ہم آئیڈیلز تو بنا لیتے ہیں. صحیح. لیکن اس آئیڈیلز کو ریئل بنانے کے لیے جو محنت کی ضرورت ہوتی ہے، جو ڈیڈیکیشن کی، جو ڈیووشن کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل وہ نہیں دیکھ پاتے، وہ نہیں رکھ پاتے. بالکل سر جی، ہم خواب تو دیکھتے ہیں لیکن خواب کی تعبیر کے لیے جو محنت اور کوشش درکار ہوتی ہے، خواب کے اندر ہر نوجوان کے اندر ایک، اگر موٹر سائیکل کی سوچ ہے، ہونڈا 125 اس کو کہتے ہیں کہ کہتے ہیں، وہ ہوگی، کسی کی پراڈو ہوگی، کسی کی گاڑیوں ہوگی، کسی کی مہنگا موبائل کیا کہتے ہیں، آئی فون 12 اور 10 اس طرح کے بچوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اکثر بچوں کے ہاتھ میں. اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ کسی اور کی کمائے ہوئے ہیں. اب اسی بچے پہ جن کو سب فیسلٹیز یعنی لگژریز آف لائف جو ہے ان کے ڈور سٹیپ پر ملے ہیں، لیکن پرائی چیز جو ہے یا والدین کی دی ہوئی چیز سب بچوں کو نہیں ملتی. کچھ سالوں بعد یہ منزل آ جاتا ہے کہ آپ نے خود کمانے ہیں. تو پھر کیونکہ وہ تو سیوڈو آئیڈیلزم کا شکار ہے کہ سب ہر جگہ ہر وقت یہی چیز ہوگی، تو پھر وہ کس چیز کا شکار ہو جاتا ہے؟ صحیح. فرسٹریشن اور ڈپریشن میں آ جاتا ہے. بالکل سر جی، وہ خبر رہی تو شلت سے خبر کٹکاؤں پشتو کے مجھے کناج دے پلور گٹلی پزوی سوکادو او بل یو ډیر مشہور فیس بک میں اکثر مجھے دا کوٹ کسو کہ خواہشات تو والد صاحب کے پیسوں سے پوری ہوا کرتی تھی، اپنے پیسوں سے تو ضروریات پوری کرنا مشکل ہے. اب آج کل تو بیسیکلی بینگ اے فادر آف ینگ کیٹس، صحیح، جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، آج ضروریات کے لیے بینگ 19 گریڈ آفیسر میں وریڈ ہوں. صحیح. بالکل میں وریڈ ان کی ضروریات کے لیے، خواہشات کو چھوڑ دو، ان کی ضروریات کے لیے میں وریڈ ہوں، اس کی ایکسپینسز کے لیے. صحیح. تو عام والد کی کیا پوزیشن ہوگی؟ لیکن پہلے زمانے میں یہ تھا کہ بچے والدین کی ان محنتوں کو دیکھتے تھے کہ میرے والد جو ہے، فار ایگزامپل آپ کو احساس تھا کہ میرے والد جو ہے اس برفیلی سردی میں، سکردو میں ہیں، یا کوئٹہ بلوچستان میں ہیں، یا گرمیوں کے موسم میں آرمی میں کسی ٹینٹ میں پڑا ہوگا سندھ کے ریگستانوں میں. بالکل. تو آپ خود یہاں محنت کرنے لگ جاتے تھے. بالکل. آج سب کچھ ہو رہا ہے کرک میں. صحیح. لیکن بچوں کے اندر، بہت کم بچوں کے اندر میں احساس دیکھتا ہوں. بالکل. یہ چمک جو ہے آگے جانے کی، جو آئیڈیلزم کو ریئلزم میں چینج کر دے، جو آئیڈیل کو ریئل کر دے، وہ نہیں مل رہی. وہ چمک مجھے بہت کم بچوں میں ملتی ہے. اور جو کوشش بھی ہے، لیکن سب کے سب بچے جو ہے اس کی گائیڈنس بھی نہیں ہے. صحیح. تو راستے سے غلط ٹریک پر چلے جاتے ہیں، اور پھر فرسٹریشن کا، ڈپریشن کا، اور یہ بے روزگاری کا جو کلچر ہے کہ آپ ایٹا ٹیسٹ میں چلے جاتے ہیں تو پی ایچ ڈی کے لیے بھی 10,000، ڈی ایم کے لیے 20,000، سی ٹی کے لیے 15,000، یہ ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک پوسٹ کے لیے اپلیکیشنز آتی ہے. تو مسائل ہے، کچھ مسائل نوجوانوں نے خود کریٹ کیے ہیں.
اور کچھ مسائل معاشرے کے ہیں لیکن ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. صحیح, بالکل. اب آپ کو یہ لیک آف کانفیڈنس کو تو میں نے اٹیچ کر دیا. ہاں بالکل, کہ اسی جگہ کے ساتھ کہ میں سوال کرنے سے اب ایک ماحول بھی یہاں ہے کہ سوال کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. یہ بھی ہے بالکل, سوال کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. اور جب مطلب میرے سامنے کسی بچے کو ڈانٹ دیا جاتا ہے بس اس کی پرسنالٹی ختم, اس کی وجہ سے مجھے بھی سوسائٹی کے اندر یہ چیز بھی بڑی عام ہے, اس کو میں کہہ سکتا ہوں عام ہے کہ سوسائٹی اپریسیشن نہیں کرتی. صحیح. اور جو سوسائٹی اپریسیشن نہیں کرے گی, جسٹ کرٹیسائز کرے گی. ایک کام کروں گا, سوشل میڈیا پر ڈالوں گا کہ میرا اس کام میں, یا آپ ڈالیں گے کہ فلاں کا اس کام میں کردار ہے, 10 باتیں ٹھیک ہے کچھ لوگ اپریشیٹ کر لیں گے, لیکن جو کرٹیسزم کرنے والے اسی معاملے سے نہیں ہوں گے. انہوں نے ایک چیز, اس بندے کا کوئی کردار کسی اور جگہ اچھا نہیں ہوگا, لیکن اسی جگہ ہم اس کو کہیں گے اس نے فلاں کام کیا تھا, غلط کام کیا تھا. تو سوسائٹی کے اندر جب لیک آف اپریسیشن آ جاتا ہے تو ایک دوسرے کو انکریج کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. اور پھر ساری سوسائٹی جو ہے, ساری سوسائٹی کے بچے جو ہیں اور جس طرح کہ آپ نے کہا لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کو چینج کس طرح کرنا ہے. بالکل سر. یعنی ہمارے بچے, میں 2-3 آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کر لیں اگر جہاں آپ کا اتفاق نہ ہو, کیونکہ آپ سے تقریباً میری ایج کا 10 سال 11 سال گیپ ہے. صحیح. ایک ڈیکیڈ پیچھے ہیں, اور وہ ڈیکیڈ جو ہے 2007 اور 2018-19 تک یہ جو گیپ ہے, صحیح, اس میں ڈیولپمنٹ بہت تیزی کے ساتھ ہے. یعنی ڈیٹا یعنی جو موبائل ڈیٹا ہے, یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اصل میں اگر ہم سر سوچے 2002 مشرف دور کے بعد یہ میڈیا جو ہے ان کو آزادی مل گئی اور بہت زیادہ ترقی ہوئی اس فیلڈ میں. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ میڈیا جو تھی وہ بالکل باؤنڈ تھا. ہم میڈیا پہ صرف وہی چیز سنتے تھے, وہی چیز دیکھتے تھے جو ان کو بتائی جاتی تھی. لیکن اب چونکہ میڈیا کو آزادی مل گئی تو میڈیا نے اس آزادی سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. اب یہی فائدہ جو ہے وہ بعض جگہوں پہ بہت زیادہ نقصان کا سبب بھی بن گیا ہے اور کچھ جگہوں پہ اس کا فائدہ بھی ہوا ہے. مطلب ہر شخص جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی کہ اگر میرے ذہن میں کوئی بات ہے, میں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں تو وہ میں کر سکوں. لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں, سوشل میڈیا کو دیکھیں, تو اس پہ ہر شخص جو ہے, خواہ وہ کس قسم کی ذہنیت کا مالک کیوں نہ ہو, وہ اس کے ذہن میں جو بھی آئے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے جو پوسٹ کی ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. اب اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اس چیز کا ترقی تو ہم نے کی ہے اس معاملے میں. پہلے آج سے 5 سال 6 سال پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ آپ کے ساتھ کتنے منٹس ہیں, صحیح, موبائل میں کتنے منٹس ہیں. ہم منٹس کا ذکر کرتے تھے کہ میرے ساتھ یہ فون نے جو سپر کارڈ والا چیز جو پیکیج کیا, انٹروڈیوس کیا, صحیح, کہ اتنی منٹس ہوتے ہیں تو لوگ فون کی طرف آنے لگے, منٹس کی بات. اور سر ایس ایم ایس بھی دیتے تھے, وہ کیا ایس ایم ایس اور منٹس ہی نہیں, ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. بالکل, منٹس. آج جو ہے اپنے خود ذرا کچھ چیزوں کو ہم یہ سرفیسلی لیتے ہیں تو اس وجہ سے اس پر سوچتے نہیں. آپ نے اس چیز پر, اس بات پر شاید نہیں سوچا ہوگا, آج کل ہم ایم بی کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے منٹ, کتنی جی بی کا ڈیٹا ہے, فلاں کمپنی کتنی ایم بی نیٹ دیتی ہے, یا فلاں کے پیکیج میں کتنا جی بی آپ کو ملتا ہے. تو سارے بات جو ہے ہم نے منٹ سے جی بی کی طرف کر لی. اور وقت بھی منٹس جو تھے وہ دکھائی دیتے تھے. صحیح, یعنی جب آپ فون پر بات کرتے تھے, کوئی آپ کو دیکھتا تھا, یعنی ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے 1 گھنٹہ کان سے موبائل لگا کر لگا ہوا ہے, کس سے بات کر رہے ہیں. بالکل, یعنی ڈیفینیٹلی ہمارے ذہن کچھ نیگیٹو میں آتی تھی کہ کہیں انوالو ہے, بالکل سر, گھنٹوں باتیں کرتی تھی. آج ڈیٹا ہے. صحیح. اب منٹس اور ڈیٹا میں کے درمیان ہم نے جو سفر کیا, اس کے لیے ہم مینٹلی تیار نہیں تھے. صحیح.
तो इस मिनट से जो MB या हम डेटा हम उसको कह सकते डेटा हैं, कह सकते GB हैं, की तरफ बिल्कुल, हमारा जो सफ़र है इसने हमें मेंटली क्या कह सकते हैं फ्रस्ट्रेटेड कर दिया। सही। कुछ बच्चे सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि डेटा उनको आसानी के साथ हाँ, मिलने बिल्कुल, लगा। हाँ। पहले पैकेजेस बहुत मुश्किल होते थे अब फ़ोन में, इंतहाई आसान अब हो गए। इंतहाई आसान है। अब मिनट्स हाँ। की बात नहीं करते, हम उस कंपनी के पैकेज को लेते हैं जिसके साथ डेटा हो। बिल्कुल। PUBG, कुछ बच्चों ने PUBG में पना ली, फ्रस्ट्रेशन निकालने लगे क्योंकि सही। फ्रस्ट्रेशन आप दो चीज़ों से निकाल सकते हैं। हाँ, फ्रस्ट्रेशन अगर आप आज छोटे से बच्चे, टीनेजर बच्चे से भी पूछे ना, तो अब वो भी आपको डिप्रेशन का शिकार मिलेगा। बिल्कुल, वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए। सही। किसी भी आप 9th-10th को आप पढ़ाते हैं बिल्कुल, तो 9th-10th के बच्चों को अगर बच्चों से आप पूछे, वो अपनी लाइफ को उस तरह, ये क्योंकि ये एंजॉयमेंट के दिन है तो एंजॉय नहीं कर रहा होगा, वो डिप्रेस आपको नजर आएगा। सही। अब बच्चों ने डिप्रेशन का हल जो है दो चीजों में देखा। एक में थोड़ी बहुत आइडियलिज्म थी कुछ बच्चों की, सही। यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं, टिकटॉक जैसे हाँ। सॉफ्टवेयर बने, बिल्कुल, हाँ, प्लेटफॉर्म वो अपने उनको वीडियोस मिले, जो है वो अपलोड बनाते हैं, शेयर करते हैं, यानी फ्रस्ट्रेशन को इस तरह निकालते हैं। कुछ बच्चे जो है अंदर से वायलेंट थे। हाँ, बिल्कुल, अंदर से वायलेंट थे, उन्होंने PUBG में पना ली। अब PUBG में क्या है, वो गन्स का गेम है, मरो मारो। मरो और मारो। सही। अब मारो जो है, क्योंकि जब आप वायलेंस करते हैं, आप तशद्दुद करते हैं, आपकी फ्रस्ट्रेशन जो है रिलैक्स होगी। बिल्कुल, हाँ। जब आप तशद्दुद के आदी हो, आप एक्सट्रीमिस्ट हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो मेंटली, सही। और आप ठीक है उसके लिए PUBG है, PUBG में वो फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं, लेकिन जब इस बच्चे के पास डेटा ना होगा, हाँ, बिल्कुल, तो फिर आप उस बच्चे को देखिए जो PUBG का एडिक्ट है और जिनके पास डेटा ना हो, खत्म हो गया हो या क्या हो, तो वही बच्चे जो है। अब वालिदैन ने क्या किया, यानी मैं भी वालिद हूँ, मैं इस सफर को कवर न कर सका, ये मिनट से जो डेटा की तरफ जो सफर है मैं इसको कवर न कर सका। सही। मैं अपने बच्चों को वो चीज जो मिनट्स को मुझे तो नजर आ रही थी, जो डेटा की तरफ उसका सफर था, बिल्कुल, उसको कंट्रोल न कर सका। सही। और वो जो है ट्रैक से शायद गलत हो गया। बिल्कुल। अब वालिदैन क्योंकि बच्चों को ट्रैक पर लाने के लिए दो किस्म के लोग किरदार अदा करते हैं। एक कौन है, एक तालीमी इदारे हैं। बिल्कुल, टीचर्स जो हैं उनके, तालीमी इदारे हैं और टीचर्स, उनके टीचर्स बेसिकली तालीमी इदारों के से रिलेटेड लोग हैं, और दूसरी तरफ उसके साथ उसके वालिदैन हैं। बिल्कुल। अब वालिद इस सफर को कवर न कर सका, और ये सफर इतना खुफिया सफर था, यानी इतना पोशीदा था, इनविजिबल था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि बहुत कम लोग इसको जान सके। सही। तो आज आपको आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके अजीज़ व क़ारिब में बहुत से लोग ऐसे मिल रहे होंगे जो अपनी एजुकेशन भी पूरे कर चुके होंगे, यानी कोई इंजीनियरिंग कर चुका होगा, कोई BS कर चुका होगा, कोई हेल्थ की तरफ जा चुका होगा, लेकिन इस चीज को कवर न कर सके। बिल्कुल। अब क्यों कवर न कर सके, क्योंकि अब यहाँ एक बड़ा मसला है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार था। सही। उसका आउटर लुक कुछ अजीब किस्म का था, कुछ अवर किस्म का था, और इनर लुक जो बिल्कुल, वो कुछ अवर किस्म का था। अब कोई ये बताने वाला भी नहीं था जो उसको जज कर सके, उसको जान सके कि इस बच्चे के इनर सेल्फ में ये फीलिंग्स इसकी क्या है, इसकी ओरिएंटेशन किस तरफ है। हमने वो बच्चा जो डॉक्टर बनना चाह रहा था, उसको उसके वालिद ने इंजीनियर बना दिया। जो इंजीनियर बनना चाहता था उसको कहीं और ट्रैक पर कर दिया। तो आप बहुत से बच्चों से अगर पूछ ले जो इंजीनियरिंग कर चुके होंगे, तो उसको खुद अपनी मंजिल का पता नहीं था कि मैंने क्या करना है, मैंने आगे क्या करना है। सही। तो अभी वो बच्चे ज्यादा सफर कर रहे हैं, और यहाँ सोसाइटी के अंदर एक ऐसा सेगमेंट नहीं है, ऐसी पीर नहीं है, ऐसे मेंटोर नहीं, अगर है तो बहुत पोशीदा है। सही। या उस पर कुछ स्टेक जो है किसी और किस्म की स्टेक लग चुकी है, किसी पर सादगीर किस्म की। किसी को कहते हैं कि ये जैसा कि सुकरात पर इल्जाम लगा था कि नौजवानों को बिगाड़ रहा है, तो किसी को हमने बिगाड़ की अलामत बना दिया। सही। तो बच्चे अपने आइडियाज
न टीचर्स के साथ शेयर करते बिल्कुल, हैं, हाँ। और न टीचर्स में ये लोग हैं जो उसके आइडियाज को समझ सके, सही। उनके साथ रीजनिंग कर सके, उसको बिल्कुल, हाँ। एक पॉजिटिव, उसकी आइडियाज को पॉजिटिव कर सही। सके। न उसके घर के अंदर है, न उसकी तलीमी एजुकेशन की तरफ है, क्योंकि तलीमी एजुकेशन में भी यानी तलीमी जो उसका स्कूल है, एजुकेशन सेंटर जिसमें वो पढ़ रहा है, सही। स्कूल है, कॉलेज है, प्राइवेट है, पब्लिक सेक्टर है, यहाँ भी एक अजीब किस्म की क्या कह सकते हैं उसको इनफेदियत किस्म की आ चुकी है कि हर शख्स को अपनी पड़ी हुई है, सही, सोसाइटी के किसी को भी नहीं पढ़े हुए। बिल्कुल, हाँ। तो वो बच्चा बिल्कुल किसी मेंटोर के बगैर, वालिद का भी नहीं है, आओ। उसका मेंटोर भी नहीं है, तो जब ट्रैक से हट जाता है तो रेलवे की तरह जो रेलवे है उसकी फिर तरह वही एक्सीडेंट बात है जो सर, लाज़िम जब होता है। मतलब रेलवे ट्रैक जो है, रेलवे के जो रेल के डब्बे हैं वो जब ट्रैक से हटते हैं तो नुकसान होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो यही बच्चे अगर अपने असल ट्रैक से ये हट जाते हैं तो लाजमी बात है वो अपना नुकसान भी करते हैं और इसके साथ साथ वो मुआशरे का नुकसान भी मुआशरे कर का भी। जाते हैं। अब इसमें मैं अगर कह दूं कि अगर आप वो कुछ मसाइल हम उसका कर लेते हैं कि यूथ को कौन कौन से मसाइल है। फॉर एग्जांपल आज की अक्सर यूथ जो है डिप्रेशन का शिकार है। बिल्कुल सर, सबसे बड़ा मसला ये है। सबसे बड़ा मसला ये सही। है। अब डिप्रेशन हम किस तरह उसका डिप्रेशन का हल हम किस तरह निकाल सकते हैं? एक डिप्रेशन ये है कि आप किसी को डिप्रेशन है, कोई इश्यू है, आपने उसके साथ मिल बैठना है, बिल्कुल, हाँ। उसको सुनना है, उसको सुनना है। अक्सर डिप्रेशन तो उसको सिर्फ सुनने ही से उनके खत्म हो जाती है। बिल्कुल, हाँ, रिलैक्स हो जाता है फिर वो। अब अगर कोई इस तरह सुनने वाला हो जिसकी अपनी भी स्टडी हो, तो उसकी मैकेनिज्म भी उसके लिए बना सकता है कि ये मैकेनिज्म अपना कर आप उसको बिल्कुल, हाँ। हल कर सकते हैं। अब हम डिप्रेशन का शिकार है, मसला ये है कि हमारे पास मेंटोर नहीं है जो हमें इस डिप्रेशन से निकाल सके। बिल्कुल, हाँ। और डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, सही, फ्रस्ट्रेशन ये होता है कि कुछ आपको वायलेंट कर लेता है। डिप्रेशन जो है आप अपने खुद में बेजार रहते हैं, बेजार रह जाते हैं, खो जाते हैं, सही। दुनिया से बेजार हो जाते हैं। और फ्रस्ट्रेशन वायलेंट है। बिल्कुल, हाँ। अभी जब मैं घर से निकल रहा था तो मसाइल थे, पॉलिटिकल मसाइल थे, इलेक्शन कमीशन डिसीजन कर चुका था और पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो थे रोड पर निकल रहे थे। अभी आप रोड पर देखें, यानी मैं जब घर से आ रहा था तो जो चैनल्स दिखा रहे थे हर जगह उन्होंने आग लगाई हुई थी, रोड को बंद किया होता। अब मेरा ठीक है, एहतिजाज है, लेकिन आप जरा इसको आज गौर से देख ले। सही। जो आग लगाने वाले हैं, आग को इधर उधर फेरने वाले हैं, वो टीनेजर होंगे। सही, बिल्कुल। यानी जो भी आज 1 घंटा आप कर ले, घर जाकर अभी नेट पर टीवी देख ले, जो भी बच्चे आपको नजर आएंगे जो टायरों को आग लगा रहे होंगे वो भी अंडर 20 होंगे। सही। जो जब आग लगाने के बाद इधर उधर उस आग को पिला रहे होंगे, सही, वो भी बच्चे होंगे। बिल्कुल। हर जगह, मुल्तान में, करक में, कोहाट में, लकी मरवत में, यानी जहां जहां भी ये मुजाहिरे हो रहे हैं आपको टीनेजर मिलेंगे। बिल्कुल। ये क्यों? ये फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ। अब ये फ्रस्ट्रेशन किस चीज में है? उनको मौका मिला, एनवायरनमेंट ने उसको मौका दिया, ये अपने फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि फ्रस्ट्रेशन जो है ये वायलेंट होता है, तो ये आप वायलेंस करेंगे, तशद्दुद, आग जो है आग फेंकेंगे। अगर पुलिस उस पर गैस फेंकती है तो ये उसको वापस करेगी। बिल्कुल, हाँ। कोई सफेद दाढ़ी वाला नहीं करेगा, नहीं, कोई लीडर नहीं करेगा जो पार्टी का है। बिल्कुल। ये बच्चे जो है खुद बहुत निकल आए हैं, उसको मौका मिला, उन्होंने रोड बंद कर दिया। अब आग इनके हाथों में होगी। सही। किसी बिल्डिंग को भी लगा सकते हैं। अब उसकी लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन को देखना है कि वो कितना फ्रस्ट्रेशन है। गाड़ियों की शीशी तोड़ेंगे, शीशा आपको कोई 30+ वाला नजर नहीं आएगा। और डिप्रेशन का शिकार हो सकता है लेकिन फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा। और ये टीम जो है ये फ्रस्ट्रेटेड होंगी, ये उन शीशे भी तोड़ेंगे, पत्थर भी फेंकेंगे, बिल्कुल, ये चीज होगी। तो ये क्या है? ये हमारी सोसाइटी के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। और फ्रस्ट्रेशन को हमारी 63%, हमने पहले भी कहा था कि मोर देन 63% लोग जो है 25 के अंदर है। बिल्कुल। अब एक बड़ी आबादी जो 25 एज की है या 30 एज की है, ये 60% से ज्यादा आपकी आबादी को कवर कर चुकी है। बिल्कुल। उसके लिए आपने कोई काम नहीं किया है, ऐसे इदारे नहीं बनाए हैं, ऐसे एनवायरनमेंट नहीं दिया है। एक खेल का मैदान खुद बना लेते हैं जमीन में,
कोई एक शख्स की ज़मीन होती है और जब देखता है कि बच्चे खेलने लगे हैं तो बंजर ज़मीन पर भी उनका काम बन जाता है और फिर उसके अंदर कि मैं तो यहाँ गंदम बो रहा हूँ। मसला क्या है, वो भी डिप्रेशन का शिकार है, वो भी बच्चों के चेहरों पर, जवानों के चेहरों पर मुस्कुराहट और ये नहीं देख पाता। तो ये मसाइल है और आप आज खुद उसका ज़रा ऑब्जर्व कर लें। बिल्कुल। तीसरी चीज़ जो है, जो मैंने पहले भी मसला डिस्कस किया तो नौजवानों के अंदर है। अब नौजवान खुद सोचे कि मेरे अंदर ये मसाइल है या नहीं। बिल्कुल। परसों जो हमारा प्रोग्राम होगा पीर के दिन मंडे को, तो फिर हम आज भी कोशिश करेंगे कि 5-6 मिनट हमारे पास हो तो हम मुख्तसरन उसके हल भी बताएंगे। सही। तो मैंने उसका नाम दिया है स्यूडो आइडियलिज्म, कि हमने बस एफएससी कर लिया, 1000 प्लस मार्क्स आ गए। बिल्कुल। ये 1000 प्लस मार्क्स जो है, आप खुद स्कूल की टीचर है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी आपका ताल्लुक है, ये 1000 प्लस मार्क्स जो एफएससी के अभी है, ये बहुत से बच्चों का बेड़ा गर्क करेगी। बिल्कुल सर जी, ये इनका माइंड जो है मतलब अभी आपने ये किसी और दुनिया में चले जाएंगे। अब 2 मसलाइल हैं इन बच्चों के लिए। एक मसला ये है कि उन्होंने 1000 प्लस है, इसकी आइडियलिज्म बन चुकी है कि बस होना है तो नहीं होना, मैंने तो डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, बाकी इसके अलावा मुझे कुछ नहीं। इंजीनियरिंग तो हो गया, अब ये करेक्ट में इंजीनियरिंग का सेंस नहीं जो सर, है खत्म मतलब हो गया। कुछ लोग जो ये 2 चीजें हमने अपने ऊपर बिठा रखी अभी है। सिर्फ डॉक्टर है, अभी सिर्फ डॉक्टर है। इंजीनियरिंग जो है करेक्ट भी कही, मैथ्स बिल्कुल खत्म होने के करीब है। स्कूल्स में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैथ्स में 5 बच्चे होते हैं, मेडिकल में 200 होते हैं। तो ये रेशियो आ चुकी है। इंजीनियरिंग के लिए आपने क्या करना होगा, मैथ्स स्ट्रांग होनी चाहिए। अब मैथ्स स्ट्रांग क्यों नहीं हुआ? मैथ्स का ताल्लुक लॉजिक से है, कॉग्निटिव थिंकिंग से है, रीजनिंग से है। हमने रीजनिंग छोड़ दी, हमने फिक्र छोड़ दी, हमने कॉग्निटिव थिंकिंग छोड़ दी, तो मैथ्स जो है डेफिनेटली और सरफेस को नहीं देख रहा। आपने सर जी, मैं यही बात करने वाला था कि हमारे जितने बल्कि ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो, अगर आप उनसे पूछें कि आपको किस सब्जेक्ट से छेड़ है, बशमूल मेरे, वो यही कहेंगे कि मुझे मैथ्स से बिल्कुल छेड़ है। मैथ्स से क्यों? या 2 वजूहात होते हैं। एक वजह तो होते हैं कि कभी मैथ्स का टीचर इस तरह, क्योंकि मैथ्स के टीचर मशहूर होते हैं बोरियत के शिकार होते हैं ज्यादातर मैक्सिमम। आप मैथ्स को जो भी मैथ्स के प्रोफेसर है या टीचर्स है, वो आपको बोर किस्म के मिलेंगे। और बिल्कुल सर जी, अगर मैथ्स के टीचर कोई लतीफा भी सुनाए ना, वो भी हंसी नहीं आएगी, वो भी जुमे के उसकी आवाज की तरह होगी। टीचर स्कूल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैथ्स से हमें नफरत कराने लग, जिसकी वजह से हम मैथ्स से दूर हो जाते हैं। बिल्कुल सर, उनकी बिहेवियर की वजह से, उनकी जो क्लास के अंदर एनवायरनमेंट वो क्रिएट कर लेते हैं। बिल्कुल, ये सब्जेक्ट की साइकोलॉजी है। फॉर एग्जांपल, आप हिस्टोरियन से अगर आपकी भी मिले, जो जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हुई है और नैरो माइंडेड होंगे, सही। इकोनॉमिस्ट से मिलेंगे तो माइजर जिसको हम कह सकते हैं, कंजूस, और ये ले दे के हिसाब किताब करने वाले, टमाटर भी वो 1 पाव की लेंगे, इस तरह के लोग होंगे। तो सब्जेक्ट मैथ्स जो है, ये तो एक वजह है। दूसरी वजह क्या है कि हमने जो कॉग्निटिव थिंकिंग का इस्तेमाल हम करते थे, उसको छोड़ दिया है। मैथ्स क्या है? लॉजिकल है, आपसे वक्त मांगता है, आपसे डिवोशन, डेडिकेशन। अगर एक स्टेप से आप इधर उधर हो गए तो स्टेप जो है आपसे खो जाते हैं, आप सारा सवाल आपका गलत हो जाता है। तो थिंकिंग में हमारी कंसंट्रेशन, उसी तरह हम उसके आदी नहीं रहे। सही, बिल्कुल। तो हमने मैथ्स, क्योंकि हम सरफेस के लोग हैं, सरफेस को देखते हैं, गहराई को नहीं देखते, डिटेल में नहीं जाते, गहराई में नहीं सोचते, प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखते, सरफेस को देखते हैं। बस ठीक है, लोग पत्थर मार रहे हैं, मैं भी पत्थर मारूं, बिल्कुल। ये नहीं सोचते कि लोग पत्थर क्यों मार रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग सोसाइटी के अंदर नहीं है कि हम क्यों के जवाब पूछे। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि हम एक सीडो आइडियलिज्म का फिर शिकार हो जाते हैं। अभी जो 10,000 वाले बच्चों की बात हो रही थी, बिल्कुल सर, जो भी है आप सुन ले। सही। हम लिस्ट बनाने लगे हैं कि जिनके 1,000 है। 9 नवंबर मैक्सिमम बच्चों के टेस्ट है, 20 नवंबर तक हो जाएंगे। फिर हम पूछेंगे कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए। मेडिकल में तो 1,200 बच्चे सारे सूबे में एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी बच्चे जो है ये 1020, 1030 के नंबर भी लेकर सोसाइटी के अंदर डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि मार्क्स उनके 1000 वाले होंगे,
जो उनकी स्यूडो आइडियलिज्म बननी होगी, डॉक्टर खुद को कहते हैं, डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, तो उसके लिए प्लान बी किसी ने नहीं सोचा होगा और फिर सोसाइटी के अंदर गलत सब्जेक्ट। सर एक बात और भी है ना, 1000 से ऊपर नंबर बेशक ये ले चुके होते हैं, मगर ये भी देखना होता है कि ये नंबर उन्होंने लिए किस तरह से हैं। अब ये नहीं मैं मतलब सर 20 बंदे हैं ना, 20 स्टूडेंट है, वो फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ कि वो उन्होंने 1000 से ज़्यादा नंबर लिए हैं, तो उसमें 5 ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी काबिलियत के बलबूते पर ये नंबर लिए होंगे, बाकी जो 15 है ना उनको खूब अच्छी तरह से हर तरह से फैसिलिटेट किया गया होगा। तो अब अगर ये रह जाते हैं तो मेरे ख्याल में ठीक है, ये रह जाते हैं, ये है ही इसी काबिल कि ये रह जाएं। नहीं, एक और बात है ना, आप खुद टीचर है स्कूल लेवल के, आप बच्चों को बेसिक से देखते हैं कि बच्चा किस अंदाज से, आपके स्कूल में प्राइमरी के बच्चे भी होंगे, बिल्कुल सर, लो जो सबसे नीची क्लास है, मतलब साइकोलॉजिकल जो प्ले ग्रुप है, उसी से लेकर कॉलेज तक के बच्चे आप उसको देखते हैं। मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था, जो हम टीचर्स डे उसकी प्रोग्राम था 5 अक्टूबर को, इफ यू रिमेम्बर, यस सर, कि हमने बच्चों को मार्क्स की पीछे, यानी मार्क्स को हमने मार्केटिंग टूल्स बनाया। बिल्कुल सर। अब इस मार्केटिंग टूल्स के लिए हमने जो प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने बच्चों को बिल्कुल खिलौना बना दिया है। अगर किसी बच्चे की अपनी है, पढ़ाई का शौक भी है, इसको इतना फैसिलिटेट कर दिया है, सही, उसको खुद अपना सवाल करना नहीं देते। क्यों नहीं करने देते? क्योंकि हो सकता है कि 4-5 मार्क्स कम आ जाए। बिल्कुल। अब अगर 4-5 मार्क्स उसके कम आ जाए तो फिर क्या होगा? उसकी स्कूल का रिजल्ट जो सोशल मीडिया में है, सोशल मीडिया में उसके है 500 प्लस वाले बच्चे कम आएंगे। तो उन बच्चों को बेसिकली हमने एक ये सहल पसंद बना दिया है कि बस पढ़ाई के बगैर भी मतलब मार्क्स आ जाते हैं। ये बच्चे काबिल बच्चे हैं, बिल्कुल। सिर्फ इनसे ये वाला है कि मार्क्स, स्टडी के बगैर मार्क्स ना आए। तो ये बच्चे फिर आगे भी जा सकते हैं। अगर जो बच्चे सुन रहे हैं मेडिकल की टेस्ट, अल्लाह करे कि सब बच्चे जो 1000 प्लस वाले हैं, सब किसी न किसी फील्ड में मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट हो जाए। लेकिन अगर एडजस्ट ना हो जाए तो बच्चों ये डिप्रेशन में नहीं जाना, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना। अभी ये जो स्यूडो आइडियलिज्म है, इसको 9-10 नवंबर के बाद अपनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार न होना अपने आप के, इसके लिए प्लान बी है। सही। जिंदगी सिर्फ डॉक्टर कामयाब नहीं है, बिल्कुल, और भी बहुत से शोबे हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने लो प्रोफाइल से बहुत बड़ा स्टार्ट किया, बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो डिप्रेशन का शिकार नहीं होना, लेकिन सिर्फ ये है कि स्यूडो आइडियलिज्म से निकलना है, अपने खुद पर एतमाद करना है। जब आप खुद पर हकीकत पसंद हो जाएंगे, खुद पर एतमाद करना शुरू हो जाएंगे, ये जो स्कूल वाली फैसिलिटेशन थी, ये कॉलेज वाली जहां आपका मार्क्स बैठता है, ये बस खत्म होने को है, खत्म हो गया है, यूं समझे ये खत्म हो गया है। इसके बाद जो कुछ करना है आपने करना है, आप कर सकते हैं। सिर्फ अपने आप से ये कह दे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल। फिर देखे कि आपकी जिंदगी का सफर जो है किस तरह शुरू हो जाता है। बिल्कुल सर, हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसे ट्रिक पे लाएं कि वो मेहनत पे यकीन करें, वो कोशिश पे यकीन करें, और वो किनात पसंद बन जाएं। मतलब मेरे 900 मार्क्स आ गए, ये मेरी मेहनत का पल है, ये 900 मेरे लिए बिल्कुल काफी है। सर्वाइवल है ना, सोसाइटी के अंदर सर्वाइवल है। 900 मार्क्स वाले भी सर्वाइव कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। अब लेकिन करना यह है सर जी कि जो माफिया बना हुआ है, जो लोग हमारे बच्चों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, ये तो बच्चे हैं, ये तो इनकी इतनी समझ नहीं है। करेक्ट में मैंने वाहिद चीज देखी आसिफ, बस प्रोग्राम भी क्लोजिंग को है, बिल्कुल पूरा है। वो बच्चे, हमें वो लोग प्यारे हैं जो हमारे बच्चों को जहर दे रहे हैं। सही। हमारी एमपीए, हमारे एमएनएस भी उन स्कूलों कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ के प्रोग्राम करते हैं, वहाँ फंक्शंस में उनकी तारीफें करते हैं, जो हमारे अपने बच्चों को जहर देने वाले हैं। तो ये जहर जब कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सर अगर कोई क्लशनकोफ पिस्टल से किसी को मारते हैं तो हम कहते हैं कि इसने कत्ल किया। अगर कोई इस तरीके से हमारे बच्चों को मारते हैं तो और हम ये हमें नजर नहीं आता। ये लोग हमें मारती भी है, हम उसके लिए तालियां भी बजाते हैं। तो प्रोग्राम खत्म करते हैं। बिल्कुल सर जी, हमका वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। दो बातें करनी है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगले हफ्ते फिर बात होगी, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
جو 9 نومبر یا 10 نومبر جن کی MDCAT کے ٹیسٹ ہے وہ بچے وہ بھی ہمارے بچے ہیں, بالکل ڈیوٹیڈلی کام کر لے, بالکل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لے. آپ کا کام محنت کرنا ہے, اس کا صلہ دینا اللہ کا کام ہے. ٹھیک ہے آپ کامیاب نہیں ہوں گے, ناکام بھی ہو سکتے ہیں, اللہ کرے کہ آپ کامیاب ہو جائے, آپ ناکام ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ناکامی شاید ناکامی نہ ہو, یہ آپ کی اگلی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہو. آپ غلط ٹریک پر جا رہے ہو, آپ نے اللہ نے آپ کو ناکام بنا کر یعنی ناکام کر کے آپ کو رائٹ ٹریک پر چڑھانا ہے. آپ کی ریلوے ٹرین جو ہے صحیح ٹریک پر آ جائے, اور آپ کوہاڑ جانا چاہتے تھے لیکن جا رہے تھے ڈیہان, آپ کوہاڑ پہنچ جائیں گے لیکن آسانی کے ساتھ. تو فرسٹریٹ نہیں ہونا. 9 نومبر کے بعد 9 نومبر تک جب تک آپ کا MDCAT ٹیسٹ نہ ہو بالکل پلان بی رکھنا ہی نہیں, پلان بی کا سوچنا بھی نہیں. پھر پلان بی کے لیے وقت ہے, آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو کامیاب کرے. ہماری دعائیں ہماری یہ ہے کہ بس اگر ناکامی بھی ہو, ناکامی سے سیکھو, آگے جاؤ اور پلان بی کرو. پلان بی میں بھی بہت سے راستے ہیں, بہت سے ہیں آپ کے لوگ ہیں, آپ کو صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں, کنٹیکٹ کر سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں. بہت سی فیلڈز ہے, یہ میڈیکل والا فیلڈ صرف نہیں ہے, آگے بھی بہت سے راستے ہیں. اور سب بچے اگر ڈاکٹر بن جائے تو پھر ایک شعبے ہی میں سارے لوگ, بہت سے شعبے ہیں آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں, بہت سی یونیورسٹیز ہے, بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ بس یہ بچہ آئے گا اور پھر آگے جائے گا. لیکن یہ جو انٹر لیول کی فیسی لیول کی جو مینٹیلٹی ہے کہ اسکول لیول پر کالج لیول پر فیسیلیٹیشن ہے, اس کو بس یک دم مسترد کرنا ہوگا. اور پھر اگلا سفر جو ہے اس میں یہ اسکول والی فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی. آپ نے خود پر یقین کرنا ہوگا, خود شناسی سیکھنی ہوگی, خود کو پہچاننا ہوگا. جب آپ خود کو پہچان لیں گے, کچھ مقاصد رکھ لیں گے اور اس مقاصد کے ساتھ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کریں گے, ڈیفینیٹلی کامیابی آپ کا راہ دیکھ رہی ہے, آپ کا انتظار کر رہی ہے, بس اگلی ہی ہے, لیکن محنت شرط ہے. بالکل سر جی, حضرت سے خبر سره مکمل اگریاں. اللہ تعالی د او کی د مجر اغا ورونه خویاندې چې اغا د ټیسټ چې د اغا د ورکړه د ورکول تیوري کوي کنه چې کوم ټیسټ دی لګیا دي د دوی کی مقصد د الله تعالی د دې مقصد کې دوی ته کامیابی ورکړي ان شاء الله. نیکسٹ پروگرام چې د هغه کې به یو ځل بیا تاسو سره ملاقات کیږي. تر هغه دمه پورې مشترکو اجازت د دې دعا سره چې تاسو چېته هو الله مو کامیاب لره, الله مو خوشحال لره, د لوی الله په امان. الله حافظ.